لوگ خوشی کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس فلپیو کے خط کا جو مین کی ورڈز ہے، تیسرا باب اس کی پہلی آیت ہے، غرض میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو. ٹھیک ہے، غرض میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو. سو گویا خوش رہنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور کس میں خوش رہنا ہے؟ خداوند میں. اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ پول جو ہے پولس رسول، اس کی زندگی دلکش نہیں تھی، اس کی زندگی خطروں والی تھی، اس کی زندگی مشکلات والی تھی، کانٹوں سے بھری ہوئی وہ زندگی وہ بسر کر رہا تھا. کیا ایسا شخص جس کی زندگی میں خود کانٹے ہوں اور خود جو ہے وہ خطروں سے بھری ہوئی ہو اور اس میں خود اس کی زندگی کے اندر مشکلات ہو، وہ کس طرح سے بڑی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے؟ نہ صرف خوش رہ سکتا ہے بلکہ خوش رہنے کے طریقے بیان کر سکتا ہے، خوش رہنے کے جو ہے وہ راز بیان کر سکتا ہے. تو اس خط میں اس نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے. آمین. اور میں نے بتایا کہ اس نے اس بات کو سیکھا کہ خداوند میں خوش رہو. تو خداوند میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے خوش رہا جا سکتا ہے، خداوند میں کیسے خوش رہے؟ تو میرا تو دل نہیں کرتا گیت گانے کو، میرا دل نہیں کرتا بائبل پڑھنے کو، میرا دل نہیں کرتا چرچ جانے کو، تو پھر میں کیسے خداوند میں خوش رہوں؟ تو پولس رسول نے دو باتوں کو بیان کیا. تو دو باتوں کے ذریعے سے پولس رسول نے کیا کیا ہے، بتایا ہے. ریزنز جو لاسٹ ٹائم میں نے دو ریزن دیے تھے، آپ کو معلوم ہے وہ دو ریزن کیا تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، پہلا ریزن کیا تھا کہ وہ خداوند میں کیوں خوش ہے؟ بولیے. ہاں، وہ خداوند میں کیوں خوش ہے؟ بولیے. اس نے خداوند کی حاکم، تھینک یو سسٹر، اسے خداوند کو اپنا حاکم مانا، اس کی حاکمیت کو اپنے اوپر جو ہے وہ لیا. اور اس نے کہ جو کچھ میرے اوپر گزرا، یہ کہا نا جو کچھ میرے اوپر گزرا وہ کس لیے تھا؟ خوشخبری کے پھیلاؤ کا سبب بنا. تو اس نے اس بات کو سیکھا کہ خدا جو میری زندگی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے جو ہے اس سے خوشخبری جب وہ پھیل رہی ہے. تو اس نے اس بات کو جان لیا کہ خدا کی حاکمیت اگر میرے اوپر ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. آمین. اور دوسری بات وہ کیوں خداوند میں خوش ہے، دوسرا ریزن کیا ہے؟ اس کے پاس کس کی امید ہے؟ آسمان کی امید ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرنتھیوں کے خط میں وہ خود فردوس میں گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یک تیسرے آسمان میں چلا گیا، فردوس میں وہ چلا گیا. اسے وہ چیزیں دیکھی، کہتا ہے جو ہمیں بتانے کی روا نہیں. گویا اس نے اس فردوس کو دیکھا ہے. تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ جو کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی آپ اس کے خطرے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی مشکلات دیکھ سکتے ہیں، لیکن تو بھی وہ کیا ہے، وہ خوش رہتا ہے. تو گویا یہ دو ریزن ہیں. لیکن یہ صرف جو ہے اس نے ہم اس کی ذات میں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لیکن جب آپ فلپیو کے خط کو پڑھیں گے تو آپ جان پائیں گے ان رازوں کو کہ کس طریقے کے ساتھ پول جو ہے وہ خوشی کے راز کو وہ اوپن کرتا ہے. آمین. کیا آپ خوش رہنے کے جو ہے وہ راز جاننا چاہتے ہیں؟ آمین. تو پھر آپ کو جڑے رہنا ہوگا، ٹھیک ہے. آئندہ کئی مہینے آپ کو جڑے رہنا ہوگا اور آپ کو سیکھنا ہوگا. اور میں نے لاسٹ ٹائم ایک بات کہی تھی، شاید آپ بولنا گئے ہوں. کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اپنے ساتھ کاپی پینسل لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی. ابھی یاد رکھیے کہ ہمیں جو ہے ان طریقوں کو سیکھنا ہے. دنیا اس وقت جو ہے وہ بڑی عجیب صورتحال کا شکار ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک واقعہ کہیں پر ہو تو لوگ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی پریشان ہوتا کہاں پر ہے، ٹھیک ہے. ہزاروں لاکھوں میل کوئی واقعہ ہو جائے تو پریشانی، ٹھیک ہے، اہم ہی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے آپ کا موٹیو، آپ کا پرپس آف لائف جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے کہ آپ جو خداوند میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے. اور آج میں اس طرح کی باتیں کروں گا، ٹھیک ہے. اور آج جو ہماری کلام کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے دا جوائے اسٹیلرز، ٹھیک ہے. کون ہے بولیے؟
خوشی کو چرانے والے ان کو، ان سٹیلرز کو جانیں گے، ان تھیفز کو، ان چوروں کو جانیں گے جو ہماری خوشی کو کیا کرتے ہیں، وہ چرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہوگا تاکہ ہم دیکھ پائیں کہ یہ کون سے چور ہے جو یہ خوشی کو کیا کرتے ہیں، چراتے ہیں. جو اسٹیلرز کی بات آج ہم کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرد غمناک کہا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ رنج کا آشنا کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یسوع مسیح اپنی زندگی میں ایسی گہری ڈیپ جوائے رکھتا تھا، ایسی گہری خوشی رکھتا تھا جو دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا جو ہے وہ کامیڈی کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کامیڈینس کو دیکھیں یا ان کے حوال کے اوپر نظر کریں تو جو پردے کے اوپر اور جو پردے کے پیچھے ان کی لائف ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ میزریبل ہوتی ہے اور وہ بہتوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہے ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے. اگر ان کو سنا جائے تو وہ شاید جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ غمگین ہو جائیں. ٹھیک ہے، سو کئی ایسے کامیڈینس جو ہے آپ جو ہے ان کے حوالے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس خوشی نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہنسا رہے ہوتی ہیں. لیکن کرائسٹ کی جب آپ بات کریں گے تو یہ اس کو تو مرد غمناک کہا گیا ہے، اس کو تو رنج کا آشنا کہا گیا ہے. لیکن تو بھی جو ہے وہ اپنے اندر ڈیپ جوائے رکھتا تھا، ایک گہری خوشی رکھتا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رومی دور میں اس کی جو ہے وہ ظالمانہ جو ہے وہ موت دی گئی، جسے ہم یہ کیا کہا جاتا ہے، صلیبی موت کہتے ہیں، جسے ہم لعنتی موت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. آمین. تو گویا جو ہے اگر آپ کرائسٹ کو دیکھیں اور اس کے بیان کو دیکھیں تو اس کے جو ہے اس کو دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے اور اس کے بیان کو دیکھیں تو کیسا آپ کو نظر آئے گا. کئی دفعہ یہ تضاد ہے، اس کی زندگی کیسی نظر آتی ہے. وہ تو مرد غم اور رنج کا آشنا ہے، لیکن کہتا کیا ہے، میں یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی کیا ہو، تم میں ہو اور تمہاری خوشی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے. یاد رکھیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی بھرپور خوشی کا تجربہ کرتے ہیں. اسے زبور 16 اور اس کی 11ویں آیت میں بھی اسی طرح کا بیان ہے. کیا لکھا ہے؟ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. صحیح ہے، تیرے حضور میں کیا ہے؟ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. پرفیکٹ جوائے. آمین. پرفیکٹ جو ہے جوائے. پریز دی لارڈ. کہاں ہے؟ اس کی پریزنس میں، اس کے حضور میں، کرائسٹ کے پاس یہ کامل شادمانی ہے. اس لیے جو یسوع مسیح کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنی کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہے، وہ گہری خوشی کا کیا کرتے ہیں، وہ تجربہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے خدا یسوع مسیح کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور میں جو ہے مسیحی ایماندار ہوں. لیکن جو ہے بہت کم مسیحی ایماندار ہیں جو اس شرف سے جس کی بابت یا زبور 16:11 میں بیان ہے جو ہے اس سے جو ہے مستفید نہیں ہوتی ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ اس کے حضور میں کامل شادمانی ہے، اس کے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. لیکن اس کے باوجود بہت کم مسیحی ہیں جو اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مایوسیوں کے گہرے بادلوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر کیا ہے، گہرے مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور نیچے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو کیا کہاں پر زندگی بسر کرنا چاہیے، خوشی کی کرنوں میں چلتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھے. آمین. خوشی کی روشنی میں، خوشی کی کرنوں کے درمیان میں ان کو موو کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. تو گویا یہ کتنا مختلف ہے
जिंदगियों का। मसीही ईमानदार या खुशी की किरणों में, उसके सनशाइन के अंदर जो है वो चलना चाहिए। खुशी की सनशाइन में, खुशी की किरणों में, खुशी की जो है वो या कह लीजिए कि रोशनी के अंदर जो है वो मूव करना चाहिए। लेकिन क्या कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, वो मायूसी के गहरे बादलों में वो जिंदगी बसर करते हैं। आमीन। अब ये कि हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस बड़ी खुशी को जो है, ईमानदारों की बड़ी खुशी को वो चरा रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिसको यह हमें जो है वो हाईलाइट करना है। मैं चंद एक चीजों का जिक्र करूंगा, लेकिन यह पॉल ने यह वो इसका जवाब दिया है अपने फिलिपियों के खत में कि उसने तकरीबन 62 एडी में जो है रोम में जो है ये खत लिखा है, और इस खत को फिलिपी के मसीहों को उसने भेजा है ताकि क्या कर सके, वो इन बातों को वो समझ जाएं और इन बातों को जान जाएं कि किस तरह से खुशी को लेना और उसको क्या करना है, अपनी जिंदगी के अंदर या दिखाना है और कायम रखना है। ये खत जो पौल ने लिखा है, दरअसल जो है ये खत जो है पौल ने जो है फिलिपी की कलीसिया को जो भेजा, ये उसने ये जो फिलिपियों की जो कलीसिया है, जो फिलिपी जिसे हम कहते हैं, उसने जो है दूसरे मिशनरी सफर में जो है इसको कायम किया था। सेकंड जो मिशनरी जो उसका जर्नी थी, इसमें उसने कायम किया। आप ईमाल 16 बाब पढ़े तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि फिलिपियों की कलीसिया कैसे वकू के अंदर आई है, ठीक है। फिलिपी की कलीसिया ने एक अपने मेंबर जिसका नाम एफ्रोदुस था, उसके हाथ में जो पौल रोम में पौल को जो है ये शुक्रगुजारी की चीजें भेजी, ठीक है। और जब पौल ने इस भाई से यह चीजों को रिसीव किया तो फिर पौल ने शुक्रगुजारी का मिशनरी लेटर लिखा। ये मिशनरी लेटर है थैंक्स गिविंग का, ठीक है, शुक्रिया का, थैंक यू लेटर है, ठीक है। और ये जो लेटर है सिर्फ थैंक यू का लेटर ही नहीं था, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा वो बढ़कर था, ठीक है, इसे कहीं जरा बढ़कर था। इस खत में पौलुस रसूल ने मसीही खुशी के राज को क्या किया है, उनके साथ शेयर किया है, ठीक है। वो उन चीजों को लेकर जो उन्होंने इसको उसके लिए भेजी थी, जब वो कैद की हालत में था तो वो बहुत खुश हुआ, और उस खुशी को जो उसके अंदर थी उसने उनके साथ वो खुशी वो शेयर की है, ठीक है। थैंक यू के साथ उसने खुशी के जो राज खोले हैं आप इस खत के अंदर वो देख सकते हैं। इसके 4 अबवाब हैं और पौलुस रसूल ने तकरीबन 19 दफा, कितनी दफा बोलिए, 19 दफा ये 3 वर्ड इंग्लिश के जो है आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। जॉय, रिजॉइसिंग एंड ग्लैडनेस। कितने वर्ड है? 19 दफा उसने जॉय, रिजॉइसिंग, ग्लैडनेस, यानी उसने खुशी को 19 टाइम जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। 4, ठीक है, 4 अबवाब है, लेकिन 19 टाइम उसने जॉय, रिजॉइसिंग, ग्लैडनेस जो है इसका इस्तेमाल किया है, यानी खुशी जो है कई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि आप अगर जो है पौलुस रसूल की हालत देखें तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई वजह नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जिस हालत में पौलुस रसूल रह रहा था इसकी कोई वजह नहीं थी कि वो इस तरह की खुशी का इजहार करे, ठीक है, ऐसे ही ना, कोई वजह नहीं है जो उसके हालात थे, कोई वजह नहीं है कि वो क्या करे, इतनी बड़ी खुशी का वो इजहार कर। 19 दफा एक ही बात को वो बार बार जॉय जॉय जॉय, रिजॉइसिंग रिजॉइसिंग रिजॉइसिंग, यहाँ ग्लैडनेस ग्लैडनेस, ये वो बातें करें। ये है कहते ना कि यार तेरा तू इतनी मुश्किल मेरे की बात जॉय की कर रहा है, रिजॉइसिंग की कर रहा है, ग्लैडनेस की कर रहा है। सो आप ये देख सकते हैं क्योंकि वो रोमी कैदी था, ठीक है। फिर और थोड़े अरसे के बाद उसके केस का जो है फैसला आने वाला था, जिसमें या तो वो क्विट हो जाए या उसे छोड़ दिया जाए या फिर उसका जो है गला, जिसका गर्दन काट दी जाए, ठीक है। उसे सजाए मौत होने वाली थी, या उसे छोड़ दिया जाता या उसे
سزائے موت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بادل جو ہے وہ اس کے اوپر عمدہ جو ہے جاری ساری تھی، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. جب آپ اعمال کی کتاب 28واں باب اس کی آخری ورسز پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ اپنے کرائے کے مکان میں جو ہے وہ کیا تھا، زنجیروں میں وہ بندہ ہوا تھا. اسے عوامی اجتماع میں جانے کی جو ہے اجازت نہیں تھی، حالانکہ لوگ جو ہے وہ اس کے گھر میں آتے جاتے تھے اور وہاں پر وہ خوشخبری کے کلام کو وہ پہنچا رہا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں پولس رسول جو ہے وہ روم میں جو ہے وہ پریچر کے طور پر جانا چاہتا تھا. جب آپ رومیوں کا خط پڑھیں، اس کے پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت پڑھیں تو پولس رسول چاہتا تھا کہ میں روم میں پریچر کے طور پر جاؤں، لیکن وہ روم میں پریزنر کے طور پر گیا، یعنی یہ ہے قیدی کی صورت میں اسے جانا پڑا ہے. جو ہے روم میں جو ہے ایک تھوڑی سی بات بتاتا چلے جاؤں، جب آپ فلیپیوں کے خط پڑھتے بھی ہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں پر ایماندار جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کچھ پلوس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. جب آپ فلیپیوں کا خط اس کی پہلا باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت پڑھیں آپ کو وہاں پر ملے گا. لیکن اور کچھ ایسے لوگ تھے جو اسے جو ہے اس کی قید کے اندر تکلیف کا باعث بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے. لیکن ان تمام خطرات اور ان تمام مشکلات کے باوجود وہ خوشی سے لبریز تھا. ٹھیک ہے. اس کی خوشی کا کیا راز تھا؟ ٹھیک ہے. یہ راز آپ کو ایک لفظ میں جو آپ کو اس خط کے اندر نظر آئے گا وہ ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ اس بات کو اس خط کے اندر ہم اس لفظ کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے پر ہم بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ لفظ پتہ ہے کیا کون سا ہے؟ اور یہ کئی دفعہ پولس رسول اس کو دہراتا ہے، کئی دفعہ اس کو وہ دہراتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ بولیے. جوائے. یہاں میں 19 ٹائم جوائے کیا. اب یہ جوائے کا سبب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کی جوائے جو ہے، جو اس کی خوشی جو ہے، اس کی جو شادمانی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس خوشی کا راز یا ایک لفظ کے اندر وہ چھپا ہوا تھا جو پولس رسول بار بار اس کا جب وہ اظہار کر رہا ہے. غور سے سنیے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا مددگار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ غمی کا، وہ مشکلات کا، وہ اپنی تکلیفوں کا وہ شکار ہیں. اور وہ لفظ جو پولس رسول بار بار وہ دہراتا ہے اور وہ ہے مائنڈ. کیا ہے وہ لفظ؟ کیا ہے بولیے؟ مائنڈ. کیا ہے بولیے؟ خیال. مائنڈ. ٹھیک ہے. ذہن، خیال. وہ اس کی بابت جو ہے وہ بار بار جو ہے مائنڈ ورڈ جو ہے آپ کو اس خط کے اندر بار بار جو ہے وہ آپ پول کو دیکھیں گے کہ وہ دہراتا ہوا نظر آئے گا. پولس نے اس کو 10 دفعہ اس لفظ مائنڈ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور اس کے علاوہ اسے 5 دفعہ جو ہے تھنک کرنا، یعنی سوچنا. کس کا؟ تھنک کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اگر اس نے 19 ٹائم اگر اس نے خوشی کا ورڈ استعمال کیا ہے تو اس کے ساتھ اس نے 10 دفعہ اس کا استعمال کیا ہے. بولیے. پھر سے بولیے. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ کس کا اظہار کیا ہے؟ لفظ کا دہرایا اس نے. اور 5 دفعہ کس کا استعمال کیا اس نے؟ تھنک کرنا. تھنک. ٹھیک ہے. سوچنا. سوچ کے اوپر تھنک. ٹھیک ہے. تھنک کرنے کی اس کا استعمال کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور ورڈ استعمال کر ریممبر، یاد کرنا. ٹھیک ہے. کس کی پر بات کرتا ہے؟ سو یہ ساری چیزیں ریممبر، مائنڈ اور تھنک، یہ ساری چیزیں یہ کس کے اوپر آتی ہیں؟ اس کے اوپر آتی ہے تھنک کیا کرنے کے اوپر. مائنڈ، خیال کرنے کے اوپر، سوچنے کے اوپر. ٹھیک ہے. یاد رکھنا کہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہاں پر. ٹھیک ہے. میں جب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، یہ کہتا ہے جب بھی تمہارے لیے جو ہے تمہارا خیال پھر سے کیا ہو گیا؟ سرسبز ہو گیا. سو یہ مائنڈ جو ہے وہ بار بار اس کے جو ہے وہ اس بات کو دہراتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس طرح تقریباً 16 حوالے ہیں جو مائنڈ کو جب وہ پیش کرتی ہے. 16 ریفرنسز جو ہیں پول جو ہے وہ کس کے حوالے سے پیش کرتا ہے؟ مائنڈ کے حوالے سے یہ وہ پیش کرتا ہے. تو گویا غور سے سنیے. ٹھیک ہے. اب غور سے بات سنیے.
दूसरे अल्फाज में मसीही खुशी का राज ईमानदार के सोचने, ठीक है, थिंक करने और फिर उसके रवैये में पाया जाता है। तो गोया आपको इस खत की जो समझ आ जाएगी, ठीक है, जब हम आगे चलकर इसको जब खोलूंगे ना इसकी सारी बातों को, ठीक है, तो फिर आपको समझ आएगी कि पौल जो है वो इस खत में किस तरीके के साथ वो खुशी का बयान करता है। तो खुशी का राज या पौल जो है वो किसके अंदर दिखाता है, बोलिए, एक ईमानदार की खुशी का राज क्या है, वो थिंक करने में है, सोचने में है और उसके एटीट्यूड में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये रवैया भी जो है वो क्या है, ये आपके अंदर से है, ठीक है, रवैये का इजहार जो है वो होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये कहा जाता है आउटलुक, ठीक है, आउटलुक डिटरमाइंस आउटकम, ठीक है, जो कुछ नजर आता है वो आपके अंदर से ही होता है। इसलिए मिसाल की किताब उसका 23वां बाब उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। आमीन। इसका मतलब ये है कि यह पौल के माइंड और पौल का जो एटीट्यूड है वो जो है बड़ा ही जो है बड़ा सीधा था, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मसीही ईमानदार अगर खुशी के राज को नहीं जानते तो उनका आउटलुक ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है आउटकम जो है वो और तरह से नजर आता है। तो नतीजा कैसा क्या निकलेगा, आउटकम क्या होगा, ठीक है, वो कैसे नजर आएगा, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये है कि आपके सोचने और समझने, ठीक है, ख्याल करने और फिर जो आपका एटीट्यूड जो है सोचने और समझने से जो बनता है आपका रवैया, वही आपको खुशी और गमी की तरफ लेकर जाता है। आमीन। इसलिए फिलिपियों के खत को पता क्या कहा जाता है, क्रिश्चियन साइकोलॉजी बुक कहा जाता है। कौन सी बुक कहा जाता है, क्रिश्चियन साइकोलॉजी बुक कहा जाता है, जो ठोस बाइबली तालीमात के ऊपर जो वो मबनी है, ठीक है। सो गोया ये ठोस जो है बाइबली तालीम के ऊपर जो है वो बेस करती है। और ये जो साइकोलॉजी है, जो क्रिश्चियन साइकोलॉजी है, आपको फिलिपियों के खत के अंदर जो है वो मिलेगी, जिसको हम जो है वो सीखेंगे कि और अपनी साइकोलॉजी को, क्रिश्चियन साइकोलॉजी को जो है वो जानेंगे और समझेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ईमानदारों को जो है वो क्या करना चाहिए, वो अपने ख्यालों को ये वो समझना होगा, अपने ख्यालों को दुरुस्त वो करना होगा, ठीक है। और अगर हमने इस माइंड को, थिंकिंग को, एटीट्यूड को जो पॉल इस खत के अंदर जो वो बयान करता है, अगर इसमें आपने क्राइस्ट को जो है वो ले लिया तो जान लीजिए कि कोई भी चीज है वो, कोई भी चोर जो है वो आपकी खुशियों को चुराने नहीं पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये सीखना होगा वो कौन से चोर हैं, ठीक है, कौन से स्टीलर्स हैं, कौन से जो है वो थीव्स हैं जो इन चीजों को चुराते हैं, ठीक है। और चंद एक का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो जिसकी वजह से जिससे हमारे माइंड, हमारे ख्यालात, हमारी थिंकिंग और हमारे एटीट्यूड जो है वो क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो फिर हम सही तरीके के साथ जो है वो जिंदगी खुदावन के अंदर बसर कर पाएंगे और खुशी के अंदर चलेंगे, शादमानी के अंदर चलेंगे, राहत के अंदर मूव करेंगे। आमीन। सो पहली चीज जो है जो खुशी चुराती है वो क्या है, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो क्या है, हालात। ये क्या है, बोलिए, सर्कमस्टांसेस जो है वो क्या करते हैं, ये जो है ये सबसे बड़ा चोर है जो खुशी को क्या करती है, ये चुराती हैं। ऐसा ही है, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपके जो है बराह रास्त आपके माइंड को, आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को और आपके जो है वो कह लीजिए कि एटीट्यूड के ऊपर जो बराह रास्त जो है वो क्या करते हैं, असर अंदाज होती हैं, ठीक है। देखिए जिंदगी के जो है
बहुत कम हालात ऐसे हैं जिस पर हम अपना कंट्रोल वो दिखा सकते हैं। कई चीजें हैं, थोड़ी सी हैं जिसके ऊपर हम कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल जो है मौसम के ऊपर नहीं है किसी का कंट्रोल मौसम के ऊपर, ठीक है। जाकर के मैं सर्दी को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल जरूर कर सकते हैं कि मैं जो है अपना गर्म कपड़े पहन सकता हूँ, ठीक है, और इससे मैं महफूज हो सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इस तरह से तो बच सकता हूँ, लेकिन मैं सर्दी को, मैं गर्मी को, मैं जो है बड़ी बारिश और तूफान को क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। मैं ज़ल्ज़लों के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। मैं आग जब फैल गई है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं लावा जो फूट निकला है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं रख सकता हूँ। सड़क के ऊपर जाते हैं, ट्रैफिक बड़ी है, तो आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, या तो खड़ा हो जाना है या फिर वेट करना है कि भी अपना जब ये सही होगी तो मैं मूव कर लूंगा, ठीक है। आप उड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप आप अनकंट्रोल है, यानी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या फिर लोग क्या कहते हैं, ठीक है, और लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है, और जो कहते हैं आप उसे रोक सकते हैं, और जो वो कर रहे हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वो शख्स, गौर से सुनिए, ठीक है, जिसकी खुशी का इन्हिसार जो है वो क्या है, मिसाली हालात के ऊपर है, ठीक है। मैं सिर्फ जो है ऐसे हालात के अंदर रह सकता हूं, अच्छे हालात के अंदर। वो क्या करता है, वो ज्यादातर क्या करता है, मिजरेबल सिचुएशन का शिकार रहता है। पता है वो मिजरेबल कंडीशन के अंदर क्यों लोग जिंदगी भर कहते हैं कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता हूं, मैं इसमें रह नहीं सकता हूं। और आपको मालूम है कई ऐसे लोग जो है वो मर जाते हैं, और कई लोग जो है ऐसे डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो बड़ी बेचारी की हालत के अंदर वो जिंदगी बसर करते हैं, ठीक है। और वो जो ये समझते हैं कि मिसाली जो हालात होने चाहिए हैं, सब अच्छा 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 होना चाहिए, वो मुतवक्को नहीं होते हैं। रिसेंटली हमें एक ऐसे खानदान के साथ मुलाकात करना पड़ी है जिनका जवान बेटा जो हो गया, जो है हादसे का शिकार हो गया। वो उन्होंने अपनी जिंदगी के इवन स्पिरिचुअली या ऐसे हालात बनाए हुए थे, वो मुतवक्को नहीं थे, वो जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उनकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है, ऐसा जो है वो सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उनको यह इस तरह से सिखाया गया था कि खुदा ऐसा करता है, खुदा ऐसा करता है, खुदा ये ऐसा आपके साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ, उनकी जिंदगी के अंदर क्या धचका आ गया है। तो मिसाली जो हालात जो है वो सामने रखते हैं, वो बड़ी मिजरेबल हालत के अंदर वो रहते हैं। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, पलूस बदतरीन हालात में खुशी से लबरेज वो क्या कर रहा था, फिलिपियों को खत लिख रहा था। हालेलुया। कौन से हालात में? बदतरीन हालात में उसको यह रिजॉइस लिखने में मुश्किल नहीं थी। लेकिन हमारी यह प्रॉब्लम ये है कि हम यह जॉय को बयान करते करते डरते हैं, जॉय को बयान करते करते कांपते हैं कि कहीं यह लोग कहें कि तू तो बड़ी मुश्किल के अंदर है और तू जॉय का इजहार कर रहा है। एक्चुअली यह माइंड के ऊपर, यह ख्यालों के ऊपर और एटीट्यूड्स को यह उन हालात ने क्या कर दिया है, वो धचका दिया और उनकी खुशी को चुरा लिया है। याद रखिए हालात जो है वो चोर की तरह जो है वो माइंड के अंदर, जिंदगी के अंदर खुशी को क्या करते हैं, वो चुरा सकते हैं, वो चुरा लेते हैं। लेकिन जिनके माइंड में क्राइस्ट रहता है, जो पॉल, इसको अभी मैं ये सारी बातें आपको बयान कर रहा हूँ, आइंदा में हम इन चीजों को रिवील करेंगे और इसको और ज्यादा जो है वो एक्सपैंड करेंगे, सीखेंगे। वजाहत करूंगा कि आप किस तरीके के साथ इनका मुकाबला कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इन बदतरीन हालात में या पॉल जो है खुशी से लबरेज होकर जॉय, रिजॉइसिंग, ग्लैडनेस के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया।
Praise the Lord. तो ये हालात जो है ये स्टीलर हैं, ये हालात जो है थीफ हैं, जो क्या करते हैं, खुशी को चुरा लेते हैं। आपको मालूम है दूसरा चोर कौन सा हो सकता है? ये तो चांद का हम मैं जिक्र करूंगा, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो जिसका एक्सपीरियंस आपको हो सकता है या होता है। आपका नजदीक दूसरा चोर कौन सा हो सकता है? जो मैंने लिखा है वो है लोग, पीपल, ठीक है, पीपल पीपल पीपल, लोग 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 लोग, ठीक है, ऐसा ही है। हम सब जो है अपनी खुशियों को या अपनी खुशी को क्या करते हैं, लोगों के सबब से खो देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी को क्या करते हैं, लोगों के सबब से खो देते हैं। वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, वो क्या है, वो क्या करते हैं और वो क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, लुकी की कहेंगे, ऐसे कहते हैं, लुकी की कहेंगे, वो तो नहीं कहेगा, ठीक है, वो तो नहीं करता है, ऐसे है ना, वो तो नहीं करता है, तो मैं क्या करता। आप देखो हमारे पंजाब में, यहाँ पंजाबी जबान में ठीक है, वो की कहेंगे, आप बुजुर्ग यहाँ पर बैठे ऐसे कहते हैं ना, वो की कहेंगे, यास्मीन की कहते, की कहते, तुझे की कहते, एंजी कहते हैं, वो की कहेंगे, ठीक है, वो की कहेंगे, वो की सोचेंगे, हैं, वो की सोचेंगे, वो की कहेंगे, ठीक है। चुनाचे हम अपनी खुशी को जो है लोगों के सबब से क्या करते हैं, वो खो देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सबब से भी लोग अनहैप्पी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि उनके जरिए से हम जो है हमारी खुशी चुरा ली गई है, तो क्या वो नहीं कहते कि मेरे वसीले से लोगों की खुशियां जो है वो क्या है, वो चुरा ली गई हैं। ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी खुशी किसने चुरा ली है, तो फिर वो भी कहता होगा कि इसने क्या किया है, मेरी खुशी को क्या कर लिया है वो। लेकिन फिर भी हमें लोगों के साथ ही रहना है, ठीक है, और उन्हीं के साथ काम करना है। ऐसा ही है, क्या आप दुनिया से निकल जाना चाहती हैं, ठीक है, क्या आप जो है वो बियाबान में चले जाना चाहती हैं, क्या आप जंगलों में रहना चाहती हैं, क्या आप जो है वो जजीरों में चला जाना चाहती हैं, ठीक है, आप कहां पर रहना पसंद करेंगे? क्या आप सोसाइटी में नहीं रहना पसंद करेंगे? क्या आप माशरों के अंदर नहीं रहेंगे? क्या आप उन कौमों मुल्कों के अंदर नहीं रहेंगे? आप कॉलोनीज के अंदर नहीं रह रहेंगे? आपको अपने घर ही में रहना होगा, आपको लोगों के दरमियान ही में रहना होगा, ठीक है, हमें तन्हा नहीं होना है, ठीक है। और चुनाचे हम ये जानते हैं कि लोग जो स्टीलर हैं वो हमारी खुशी को क्या करते हैं, वो लिए चुरा लेती हैं, वो छीन लेती है हमारी खुशी को, वो चोर हैं, लोग चोर हैं, ठीक है। मैं अपने लिए भी कहता हूं और आप मेरे लिए भी कह सकती हैं कि लोगों में मैं भी शामिल हूं, ठीक है, आप भी लोगों में शामिल हैं, जो है। अब ये देखना, ये दोनों तरफ में है, लेकिन याद रखिए हमें तन्हा होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए हमें मसीह को वो जला देना है। हालेलुया। हमें मसीह को क्या करना है, बोलिए वाय। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो, और फिर यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का क्या हो, बोलिए नमक हो। अगर कई दफा ये रोशनी क्या करती है, मध्यम पड़ जाती है। दुनिया का नूर है, लेकिन ये रोशनी क्या होती है, कई दफा मध्यम पड़ जाती है, और आप कई दफा आंखें खोलकर भी आंखें खोलना पड़ती है, और कई दफा ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, नजर ही नहीं हमें आता है। और कई दफा नमक खराब भी हो जाता है, वो आपको जमीन पर जो है वो गिरा हुआ नजर आता है, क्योंकि उसका टेस्ट वो खत्म हो जाता है, और इसकी वजह लोग होती है। रोशनी मध्यम पड़ गई, इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा बल्ब क्या हो गया है, वो फ्यूज हो गया है। ऐसे कहते हैं ना, इन्हें मेरे फ्यूज कर देता, ठीक है, इन्हें जो है मेरी खुशियां कर ली, मुझे छीन ली, मैं अपनी सारी जिंदगी रोता रहा, चिल्लाता रहा और मार खाता रहा इसकी वजह से। ऐसे उंगली उठाते ना, इसकी वजह से, उसकी वजह से लोग चुराते हैं, खुशी चुराते हैं। आमीन। लेकिन
नमक भी है, रोशनी भी है। अपनी रोशनी जो है, कईयों की रोशनी मध्यम पड़ी हुई है। तुझे क्या हुआ है? तेरी रोशनी कम क्यों हो गई है? तेरा जायका क्यों कम हो गया है? ठीक है, तो क्या कोई तरीका ऐसा है कि हम जो है खुशी को जो है वो हासिल कर सके? ठीक है, इसलिए यह है वो हमें जो है वो सीखना होगा। हमें इस दुनिया में रहकर मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना होगा। तो ये चोर हैं, लोगों के सबब से हम क्या करते हैं, वो अपनी खुशी का नुकसान उठाते हैं और वो हमारी खुशी को चुरा लेते हैं। आमीन। तीसरी चीज वो क्या है? चीजें। क्या है? पहली खुशी, पहली कौन सा चोर है? हालात, सर्कमस्टांसेस। दूसरी लोग, और तीसरी क्या है? थिंग्स। चीजें। कौन सी है? चीजें। ठीक है, इब्राहिम लिंकन को कौन जानता है? जानते हैं? कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट था। वहां पर दो बेटों के साथ जा रहा था। ठीक है, वो दोनों जो बेटे थे वो क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे और लड़ रहे थे। ठीक है, उसके दोस्त ने जब पूछा कि इनके साथ क्या मसला है, तो इब्राहिम लिंकन ने कहा कि ये वही मसला है जो सारी दुनिया का मसला है। ठीक है, ये वही मसला है जो सारी दुनिया का मसला है। ठीक है, कहता है मेरे पास 3 अखरोट हैं। मेरे पास कितने अखरोट हैं? लेकिन ये कहते हैं कि हमें 2-2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 3 अखरोट हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 2-2 चाहिए। तो कहता है भाई ये तो सारा मसला सारी दुनिया का ये मसला है। ठीक है 3 अखरोट तो चाहिए कितने? 2-2। 2 बंदे हैं, चाहिए क्या है? वो 2-2 पूरे के। ये नहीं कि 1.5 ले लें, नहीं, ये मंजूर नहीं, बल्कि क्या है? बोलिए, 2-2 चाहिए। चीजें चोर हैं। ठीक है, चीजें क्या है? चोर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की इंजील उसके 12वां बाब उसकी 15वीं आयत में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये खुद पढ़िए। 12-15। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। ठीक है, किसी की जिंदगी क्या है? उसके माल पर मौकूफ नहीं। पहाड़ी बात में भी क्राइस्ट ने ये बात कही थी। क्या कही थी? अपना माल जमीन पर जमा ना करो, वो महफूज नहीं, वो हमेशा नहीं रहेगा और ना वो किसी को मुतमिन कर सकता है। ठीक है, लेकिन लोग आज ये ख्याल करते हैं कि हमें चीजों से खुशी हासिल होती है, जो मेरी अपनी है। मुझे कुछ चीजों से क्या होती है? खुशी हासिल होती है। ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास आईफोन है, ठीक है, 16 प्रो मैक्स है। ठीक है, तेरे पास 16 है, मेरे पास प्रो मैक्स है। ठीक है, तो वो खुशी होती है। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास यार वो कौन सी बात होती है यार? रोलेक्स और दूसरी जो होती है जो भी डिजिटल है। ठीक है, जो आपका सारा कुछ करती है। ठीक है, एप्पल वॉच है, मेरे पास एप्पल वॉच है। ठीक है, रोलेक्स है, ये है वो है। ठीक है, मेरे पास ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। ठीक है, मैं फलाना ब्रांड पहना हुआ हूँ, मैंने ये पहना हुआ हूँ, मैंने जूते दिखाते हैं, ज्वेलरी दिखाते हैं, अपना आप वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों से क्या होती है? खुशी होती है। एक्चुअली जो है चीजें जो हैं हमें हकीकी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि ये खत्म हो जाती है। ठीक है, आईफोन था, आईफोन जो है कहाँ से कहाँ चला है। ठीक है, 13 था, 13 प्रो मैक्स, फिर 14 प्रो मैक्स। ठीक है, 16 प्रो मैक्स। ठीक है, तो कोई चीज जो है वो क्या है? वो खड़ी ही नहीं होती है। चीजें जो हैं वो हमारी खुशी को चला लेती हैं। ठीक है, हम दूसरों की चीजों को देखकर रश्क करते हैं। ठीक है, और लोग ने कहा कि मैं जवान था, अब क्या हूँ? बुढ़ा।
मैं जवान था अब बुढ़ा हूं, लेकिन मैंने साधक को देखा टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। ये क्या कहता है कि मैं उस रात से गुजरा और मैंने यह शरीर को बड़े इक़्तिदार के साथ उसकी हर एक दरख्त की मानो जो है उसकी उसी की जगह के ऊपर जब वो बढ़ते हुए देखा, लेकिन जब मैं दूसरे दिन वहां से गुजरा वो था ही नहीं। ठीक है, तो गोया आप ये देखिए कि हम जो है वो गाड़ियां देखकर दूसरे को रिस्क करते हैं, हम बंगले देखकर, हम स्टेटस देखकर, हम उनके पहनावे को देखकर हम अपने आप की तरफ ध्यान करते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया हुआ है और जिसमें हमने जो है हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो खुदा ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। अपने माइंड को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को, अपने रवैये को जो है डिस्टर्ब होने ना दीजिए, क्योंकि यही अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो फिर आपकी हमेशा की खुशी जो है वो चोरी हो जाएगी। तो चीजें क्या करती हैं, ये हमारी खुशी को चुराती हैं। इसलिए इन चीजों के ऊपर जो हमें जो है जो हकीकी नहीं है, जो आज काम में लाते लाते क्या हो जाएंगी, वो फना हो जाएंगी, हम उसके ऊपर भरोसा ना करने वाले हों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात जो सबसे बड़ी बात है जिसके सबब से यह खुशियां जो हैं वो लोगों की चुरा ली जाती हैं या चोरी हो जाती हैं, और वो क्या है? पहली बात कौन सी थी, बोलिए? सर्कमस्टांसेस, पीपल, फिर थिंग्स, और फिर यह आखिरी बात जो है वो क्या है, बोलिए? वो है वरी, फिक्र। ठीक है, फिक्र ये सबसे ज्यादा जो है बैड थीफ है। ठीक है, ऐसे ही है ना, सबसे बुरा चोर कौन है? फिक्र। कितने ज्यादा लोग हैं जो फिक्र की वजह से अपनी खुशी और अपनी भरपूरी से महरूम हैं। फुलनेस, जॉय एंड फुलनेस से क्या है, वो महरूम है। किस बात से? फिक्र। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो फिक्र कर, एक घड़ी को तो फिक्र कर अपना बाल जो है वो क्या कर सकते हैं, काला या सफेद नहीं कर, फिक्र करके। ठीक है, फिक्र के आपको मालूम है जिस्मानी असरात मरतब होते हैं, ऐसे ही है ना। और याद रखिए यह मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स को तो दूर कर सकती है, लेकिन रीजन को दूर नहीं कर सकती। मेडिसिन सिम्टम्स दूर कर सकती हैं, लेकिन ठीक है, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन शायद जो है वो पीस नहीं आ सकता है। ठीक है, पीस नहीं आएगा। ठीक है, तो गोया आप सुकून को खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, फिक्र जो है वो अंदरूनी काम करती है, जो अंदर काम करती है, जिससे इंसान के जो ख्यालात हैं, जिसका माइंड है, थिंकिंग है, और जो कह लीजिए कि उनका जो रिमेम्बरिंग है, ठीक है, वो क्या होती है, वो लॉस, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। ये फिक्र ऐसा काम करती है। ठीक है, पौलुस रसूल, ठीक है, हम एक्चुअली जो है हमारा जो मेन टॉपिक जो पॉल है, हम पॉल को सामने रखकर स्टडी कर रहे हैं। पॉल फिक्र करना चाहता तो उसके पास कई एक वजूहात थी। ठीक है, जो हमने दूसरे क्रंथियों के खत के अंदर लास्ट टाइम पढ़ा भी था। उसके पास कई एक वजूहात थी, उसको जो है अपना वो फिक्र कर सकता था। ठीक है, उसके पास कई मौके थे जिसमें जब वो फिक्र कर सकता था। वो रूमी कैदी था। ठीक है, लोग बटे हुए थे, लोग जो है वहां पर के लोग बटे हुए थे। उसके पास कोई शख्स नहीं था जो उसकी हमायत करता। होता ना कि ये चर्चों के अंदर बोर्ड बने होते हैं, ठीक है ना, कोई बोर्ड मेंबर नहीं था जाकर क्या करे, वो उसका हमायती बन सके। आजकल जो है लीगल जो है वो एडवाइजर्स होते हैं, क्रिश्चियन लीगल एडवाइजर्स बहुत सारे हैं। आज किसी को जब कोई मसला आज हो जाए ना तो पूरी दुनिया का क्या लीगल सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। ऐसा ही है ना, ठीक है, आसिया बीबी या और बहुत सारे या केसेस के अंदर कितने लीगल जो है वो एडवाइजर्स आ गए थे, लेकिन पॉल के पास कोई लीगल एड नहीं थी। ठीक है, वो फिक्र कर सकता था
कि मेरे लिए, और उसने एक दफा ये जिक्र भी किया है, मेरी पहली जवाबदेही में सब ने मुझे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, कोई नहीं आया, कोई उसके पास नहीं था। उसकी जवाबदेही में वो केस लड़ रहा था, वो जो है वो बादशाह के सामने है, लेकिन उसको कोई लीगल एड नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं यहूदी अपने लीगल एडवाइजर के साथ वो यरूशलेम में पहुंच गए थे कि भी हम जो है वो केस लड़ेंगे, वकील के साथ केस लड़ेंगे। लेकिन पौल के पास कुछ भी नहीं था, वो फिक्र कर सकता था, उसे फिक्र गैर कौम जो है उसे दबा रहे थे, उसके खतरे थे, वो फिक्र कर जो है गैर कौम का खतरा मेरे ऊपर है। उसको यहूदियों का यह खतरा था, वो उसकी फिक्र उसको तंग कर सकती थी। वो दरिया के 14 दिन दरियाओं के खतरे में पड़ा रहा, उसकी ये फिक्र उसे तंग कर सकती थी। वो जो है समुद्र के खतरों में रहा है, वो डाकुओं के खतरे में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खतरा में रहा, उसे अपनी सेहत का खतरा था। ठीक है, उसे 5 बार बैंड लगी है, 3 बार बैंड लगी है, 5 बार उसे कोड़े लगे हैं, उसे अपनी सेहत का यह खतरा था कि मैं मर ना जाऊं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसने इस फिक्र को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं आने दिया है। ठीक है, उसने जो है इस शोर को जो है अपनी यह खुशी चुराने नहीं वो दी है। ठीक है, अगर सही तौर पर हम मसीह के अंदर जब वो कायम हो जाए या मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर आने दें, तो फिर क्या होगा, हमारा ज़हन जो है, हमारा ख्याल, हमारा ज़हन, हमारा ख्याल और हमारी याद दहानी जो है वो बहुत मजबूत हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम कहेंगे कि अगर हमारे ज़हन का जो रवैया, जो हम परवान चढ़ाएंगे, ठीक है, ज़हन का जो रवैया, ठीक है, जो हमारे ख्याल, हमारी सोच में जो परवान चढ़ेगा, वो हमारी खुशी या उसकी कमी का ऐलान करेगा। हमारी खुशी का ऐलान कौन करेगा? हमारे माइंड के अंदर जो चीज परवान चढ़ेगी। ठीक है, हमारे माइंड में जो चीज परवान चढ़ेगी वही हमारी खुशी को अप करेगी और वही हमारी खुशी को क्या करेगी, काम करेगी। आमीन। पौल जो है इन 4 अबवाब में माइंड के 4 रवैयों का जिक्र करता है। ठीक है, 4 जो है वो एटीट्यूड का, माइंड के 4 रवैयों का जिक्र करेगा, जो हालात, जो लोगों, जो चीजों और जो फिक्रों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, हालात को कंट्रोल करने के लिए, फिर लोगों को कंट्रोल करने के लिए, फिर चीजों और फिर फिक्र के इन चोरों को क्या करेगा, या पकड़ेगा और खुशी पैदा करेगा। तो ये माइंड के जो है 4 रवैये हम देखेंगे और इसको बार जो है हम स्टडी करेंगे, जिससे हम फिक्रमंद होने से बच जाएंगे। ठीक है, और वो 4 रवैये हम अगली दफा डिस्कस करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन चारों में से जो 4 अबवाब के अंदर जो चीजें पॉल ने डिस्कस की हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो 4 चोरों को हमने पकड़ना है ताकि हम अपनी खुशी को क्या कर सके, या कायम रख सके और अपनी खुशी के अंदर भर सके और तरक्की कर सके। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, पहली बात कौन सी है? हालात। एक आवाज होकर बोलिए, क्या है? हालात। दूसरा कौन? फिर कौन? फिर कौन? फरीस। ठीक है, फिक्र। तो ये चोर हैं। ठीक है, और इनको लीड करता है कौन? शैतान। ठीक है, लीडर कौन है इसका? शैतान। ठीक है, पीछे ये हालात पैदा करने के लिए चीजें और लोग और फिर मरीज। इसलिए जरूरी बात यह है कि हम इन चोरों को, इन कासदों को जो भेजे हैं, इनको पकड़ सकें, इनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड के अंदर कैसे जो है आप स्टेबल हो सकते हैं और किस तरह पर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं और कायम हो सकते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आप खुद ही नहीं बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट करें ताकि वो इस स्टडी को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके, इन पैगामात को जो वो सीख सकेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर गहरे तौर पर काम कर सकेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको